یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہے ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منعقد جشن ادب کا 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول، جو جشن پیرزادہ قاسم کے نام سے بھی منایا گیا. جشن ادب کے 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول 2015 کا آغاز پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شاعر اور جن کے نام سے یہ شام رکھی گئی تھی جناب پیرزادہ قاسم صاحب کی تقریر سے ہوا. انہوں نے اپنی تقریر میں اپنی اسپیچ میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. لیکن پہلے جینگو کی بات 40 سیکنڈ تک لا رہے ہیں. جینگو بنانا، جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ. 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام. آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا. جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی. سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر. خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا. درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا ہوا. ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک دیا جلا ہوا ایک دیا بجھا ہوا. پیرزادہ قاسم صاحب کے اشعار کے ساتھ، کیونکہ ان کا جشن ہے اور یہ بہت مختلف قسم کا جشن ہے کہ جس کا آپ تشریف رکھیں. اچھا ان کا جشن ہے اور یہ پہلا تقریباً 53-54 جشن ان کے ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، لیکن یہ پہلا جشن ہے جس میں صدارت ہندی کے شیرش کبھی پدم وبھوشن گوپال داس نیرج صاحب کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ان کی عمر 90 سال کی عمر میں 91 سال کی عمر میں ہندی اردو کی خدمت کے لیے کیسے رہتی ہے، یہ آپ دیکھیں روزانہ کا جشن ہے. میں ظاہر سی بات ہے کہ مقام پر ان سے شاعری سنی جائے گی، لیکن میں پیرزادہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کسی اپنی غزل سے اس جشن کے اپنے ابتدا کریں اور اپنے خیالات پیش کریں اور پھر ہم مشاعرہ شروع کریں. تشریف. معزز خواتین و حضرات، یہ موقع تو شکر گزاری کا ہے اور میں ظاہر ہے کہ ادب اور شاعری سے جڑا ہوا ہوں اور میں ان لوگوں کی کہ جو جشن ادب کے عنوان سے یہ تنظیم چلا رہے ہیں ان کا بہت توجہ سے، بڑی دلچسپی سے ان کی طرف غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ بیشتر نوجوانوں کی تنظیم ہے اور ہم لوگ بڑی دلچسپی اور آرزو مندی کے ساتھ ان کی جانب دیکھتے ہیں کہ آنے والے زمانوں میں جو ہمارے درمیان محبت، اخوت، ادب، زبان اور زبان کی ثقافت کے جو سلسلے چلیں گے اس میں ان نوجوانوں ہی کا حصہ ہوگا. چنانچہ میں بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آج کی محفل ایک لحاظ سے
एतराफ़ खिदमत की भी है, इसलिए कि देखिए जो शख्सियत इसकी सदारत फरमा रहे हैं और जो अकाबरीन यहाँ बैठे हैं, इस तरीके से इस सतह के इतने बड़े लोग यकजा आपको नजर नहीं आते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे साथ हैं, इनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। ऐसे मौके पर वो सब लोग के जो अमली तौर पे हिस्सा ले रहे हैं, और जश्न अदब तो नौखेज है, वो उससे भी पुराने हैं। आपने DCM का हवाला भी यहाँ सुना, आपने कामना जी का हवाला भी सुना, अभी यहाँ बैठी, और ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ज़बान और उसकी सकाफत आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, और ये तो बैनुल अक़वामी भी है महफिल। इसमें डॉक्टर अब्दुल्ला वाशिंगटन से, अमेरिका से, वो भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो वहाँ उर्दू का काम कर रहे हैं। तो जनाब, ये तो अब इन सरहदों से निकल के आलमी सतह पे ये उर्दू ज़बान और या कहिए कि शायरी, ये इस तरीके से मौजूद है। और मैं जो बार बार इस पे तवज्जो देने की कोशिश करता हूँ, और जैसे 3 बरस पहले जब इसकी इब्तिदा हुई थी तो मैंने बेसाख्ता इनका मदद और इनके साथ ताउन का जो है इजहार किया। उसकी वजह यह है कि हमारे इस इलाके में बड़ी दौड़ लगी हुई है प्रोफेशनलिज्म की। आला किस्म के प्रोफेशनल्स चाहिए, A क्लास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स। मैं पूछता हूँ कि ये जो सब आला एक से एक अच्छा आपको कराए, तो ये आपको इंसान चाहिए या रोबोट्स? अगर इंसान चाहिए तो उनका तो जहन भी दिल की तरह धड़कता होना चाहिए। अगर इंसान चाहिए तो वो मोहब्बत के रिश्तों को समझने वाले होने चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा इंजीनियर, अगर वो अदब से जुड़ा हुआ हो, और इस तरीके से, जैसे कि हम पहले कहते थे कि साहब सुभान अल्लाह कितना अच्छा और बड़ा डॉक्टर है, मगर उसका अदबी ज़ौक़ देखिए, हज़ार शेर याद है। वो अपने मरीजों से भी शेयर करता है, वो अपने मिलने वालों से भी शेयर करता है। इसे हम कहते हैं रची बसी शख्सियतें पैदा होती हैं, इकहरी नहीं। तो मैं इकहरेपन से डरता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आने वाले, ये बड़ी भरपूर शख्सियतें हों, ये अपने प्रोफेशन में भी आला हों, और ज़बान और अदब और ये सारी चीज़ें जानते हों, ख्याल रखते हों। तो ये तंजीम इस लिहाज से मुझे पसंद है कि ये बुजुर्गों का एहतराम और इज्जत करते हैं। और देखिए कितने उर्दू दुनिया जो है, उसमें जो एडिटरशिप है, उसमें एक सबसे बड़े, इनसे सीनियर शायद ही कोई हो, विक्रम साहब यहाँ मौजूद हैं, पहली साहब में बैठे हैं। तो ये बुजुर्गों का एहतराम और इज्जत और ये सारा, इसके साथ ही हम चल सकेंगे आगे। तो इसके लिए जो भी मदद की ज़रूरत हो, इनकी आप भी करते रहिए। हम सब पे ये फर्ज है कि हम मदद करें। तो ये मेरा ख्याल है कि मौके की मुनासिबत से यही बातें काफ़ी थी। अब ये मुशायरा शुरू करें तो फिर आगे आपसे बात। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप जाएं, ये शमा जो आपके नाम से, इसको रोशन आप ही करें। मैं डॉक्टर शर्मा से गुजारिश करता हूँ कि मदद करें। शमा को बड़ा नीचे रख दिया। चलिए सर, हो गई। आप किसी महफिल में हो और आप यूं माचिस जलाएंगे तो ये अखलाक से आ रही चीज, इसे आपको अपनी तरफ चलो बाबू। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में
अपनी निजामत के जौहर दिखाए। जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबान अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमत के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमत के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमत के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। तो ये था जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।